ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ କହୁଛୁ पिता परमेश्वर हम दोनों को तेरे हाथ में समर्पित ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ ହଉଛୁ यूज द सोलो ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କର इन जीसस नेम वी ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ आमेन ଆମେନ୍ जोरदार पहले प्रभु की ताली बजाएंगे ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଳି ବଜାନ୍ତୁ। हालेलुया हालेलुया वो हमारे मध्य में है हालेलुया ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି Praise the Lord. Praise the Lord। आज रात के समय में आपका ध्यान सेकंड सामुएल की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 13वें वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ ଆଜି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। मैं रिक्वेस्ट करूँ भाई जॉन प्लीज रीड एंड हेल्प सेकंड सामुएल 12:13 ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ ତାର ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ନାଥନକୁ କହିଲେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି ଏଥିରେ ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ 14 ତଥାପି ଏହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ଯେହେତୁ ତୁମର ଏହି ଯେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। खुदावंद इस वचन के पढ़े और सुने जाने में हमें बहुत आपकी आशीष प्रदान कर ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ପଢିଥିବାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ आज रात के समय जो संदेश मैं देने जा रहा हूँ ଆଜି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି उसका शीर्षक है पाप के कारण एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में आने वाले 10 प्रकार के नुकसान ତାହାର ବିଷୟ ଏହା ଶୀର୍ଷକ ଏହାଟେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା आत्मिक व्यक्ति ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଦ୍ୱାରା 10ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ହରାଉଅଛି नुकसान ଆଉ ହରାଇ ଦେଉଅଛି କ୍ଷତି ହେଉଅଛି। ओके आत्मिक व्यक्ति मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानने मानने वाला व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିବା ମାନୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। मैं उस सर्कल के अनुसार बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा ଆଉ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। पाप के कारण एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में आने वाले 10 प्रकार के नुकसान ପାପ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା 10 ପ୍ରକାର କ୍ଷତି। हम सब लोग आत्मिक लोग हैं ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ। हर एक संडे चर्च जाते हैं प्रार्थना करते हैं उपवास करते हैं फ्राइडे के दिन ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉପବାସ କରୁଛୁ। साल में 3-4 बार ऐसे हम छोटे बड़े कन्वेंशन में या बड़ी रिवाइवल मीटिंग में जाकर वचन को सुनते हैं ଆଉ ବର୍ଷକୁ 2-3 ଥର ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ରେ ଆଉ କିଛି ସଭାରେ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁଅଛୁ। आपकी मेरी जिंदगी में वचन कहीं ना कहीं रोज हमसे बातें करता है ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହେ। कई बार हमारी जो उन्नति जो होना चाहिए प्रोग्रेस परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं हो पाता है ଆଉ ଅନେକ ଥର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର ତାହା ହୋଇନଥାଏ। क्यों କାହିଁକି? क्योंकि कुछ ऐसे पाप हैं जो हम चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकते या पाप हमसे दूर नहीं जाता କାହିଁକି ନା ଏମିତି କିଛି ପାପ ରହିଛି ପାପ ଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଠାରୁ ଆମେ ପଳାୟନ କରିପାରି ନଥାଉ। आज के जमाने में आत्मिक लोगों को हीलिंग की आवश्यकता नहीं वचन की आवश्यकता है ଆଜିର ଯୁବାପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତାର ଆରୋଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। आपका रिश्ता उसके खुदावंत के साथ अच्छा है अपने आप हीलिंग विल टेक प्लेस ଆଉ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ। आपका रिश्ता यदि प्रभु के साथ अच्छा है अपने आप चंगे रहेंगे ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପେ ଆପେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। जो गद्यांश हमने पढ़ा है ଆଉ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢିଅଛୁ ये महान राजा दाऊद के बारे में बताता है ଏହା ମହାନ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କହେ। महान राजा दाऊद हम कहते हैं महान राजा है ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହୁଛୁ ମହାନ ରାଜା लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे खतरनाक 3 जिन्होंने पाप उसने कर उस सिंहासन में बैठकर एक्टिंग कर रहा था ଆଉ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 3 ଥର ସେ ପାପ କରି ସିଂହାସନରେ ଅଭିନୟ ଭାବରେ ବସିଥିଲା। वो ऐसे पाप जिससे परमेश्वर अति घृणा करते हैं ଆଉ ଦୁଇଟି ଏମିତି ପାପ ସେ କରିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଘୃଣା କରନ୍ତି। सबसे पहला पाप उसने व्यभिचार किया ଆଉ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ପାପ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା। दूसरा पाप उसने मर्डर किया ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାପ ସେ ହତ୍ୟା କଲା। तीसरा पाप वो झूठ बोलकर एक्टिंग किया ଆଉ ତୃତୀୟ ପାପ ସେ ମିଛ କହିକି ଅଭିନୟ କଲା। ध्यान से सुनिएगा ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ एक राजा ଗୋଟିଏ ରାଜା इस्राएल और यहूदा को
शासन देने वाला। इस्राएल और जिहुदा लोगों मन को शासन करिवा लोको जब उस समय उसने पाप किया, पाप करके मर्डर करके झूठ बोलकर एक्टिंग करके वो शासन कर रहे हैं कि नो वन नोस माय सिन। ଆଉ ସେ କଣ କଲା ପାପ କରିକି ମିଛ କହିକି ସେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଆଉ ଅଭିନୟ ଭାବରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲା पूरे प्रदेश में। ପୁରା ପ୍ରଦେଶରେ। सिर्फ परमेश्वर को और दाऊद को मालूम था कि उसने पाप किया, उसके बावजूद भी सिंहासन में बैठ के ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆଉ ଦାଉଦକୁ ଜଣା ଥିଲା ଯେ ସେ ପାପ କରିଛି, ସେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁଅଛି ଯେ ସେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। परमेश्वर ने इंतजार किया। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ଅପେକ୍ଷା କଲେ। अपने मन से पापों को अंगीकार करता है या मैं किसी और को भेजूं इसने पाप के बताने चिताने के लिए। ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ କି ତାହାକୁ ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ କାହାକୁ ପଠାଇବି। परमेश्वर ने इंतजार किया कि कब दाऊद जो है अपने मन से अपने पाप को स्वीकार करेगा। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଦାଉଦ ନିଜ ମୁଖରୁ ସେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। वो बात अलग है। एक्ट 13:23 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं दाऊद जो है मेरे दिल के समान है। ଆଉ ଯଦି କି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 21:13 ଲେଖା ଅଛି ସେ ଦାଉଦ ହେଉଛି ମୋର ପାଖର ଲୋକ, मेरे दिल के समान है। ସେ ମୋର ମନର ମିତ। उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन उसके शुरुआती दिनों में कहता है मेरे दिल से बहुत दूर है। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାକୁ କହୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅତି ଦୂରରେ ଅଛି। अभी पाप करके शासन भी कर रहे हैं और डिमांड और कमांड दोनों कर रहा है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି। परमेश्वर भी देखता है कि हम कब अपने मुंह से अपने पापों को अंगीकार करेंगे और कह देंगे यस परमेश्वर मैंने पाप किया है। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି ବୋଲିକି। ये तीन ऐसे खिलौने काम करके अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं एज ए गुड किंग। ଆଉ ଏମିତି ଅଭିନୟ ପାପ କରିକି ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା। परमेश्वर ने देख किया उसके बाद में एक ऐसे व्यक्ति को भेजा, एक ऐसे प्रॉफिट को भेजा। पहली बार उस राजा के सामने कोई प्रॉफिट आकर उसकी गलती के बारे में बता रहा है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖି ସହି ଗଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ପଠାଇଲେ ଯିଏ କି ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାର ପାପକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା। 2 Samuel 12:1। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12:1। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାଥନକୁ ପ୍ରେରଣ और କଲେ। वो उसके पास जाकर कहने लगा। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। वो कहानी आप सबको मालूम है ସେ କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ना? कहानी का साहब बोलना चाहता हूँ। କାହାଣୀ ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। राजा दाऊद कहानी सुनकर उसको नींद नहीं आया, ରାଜା ଦାଉଦ କାହାଣୀ ଶୁଣି ତାକୁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ, उससे गुस्सा आया। ତାହାକୁ ରାଗ ଆସିଲା। अंग्रेजी में लिखा he became so angry। ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। और दो बात उस नातान से बोला। ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା କଥା ସେ କହିଲା। Who is that man? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? Who is that man? ହାଇ ଲୋକୁ ନାଇଁ। Tell me, ହାଇ tell me। କୁହ ଆମକେ। He has to pay his life। He has to pay his life। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହରାଇବ और उसके साथ 4 गुण उसको भरना पड़ेगा। ଆଉ ତାହାକୁ 4 ଗୁଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। नातान तो पहले सुन के डर गया, इसने बोला कि भैया मेरी जान की खतरा है, मुझे दुम दबा के भागने दो। ଆଉ ନାଥନ ଶୁଣିକରି ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଲା। ଆରେ 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 ମୋର ଜୀବନ ପୁରାପୁରି ଭୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ପଳାଇବି। नहीं, ନା नातान डर के भागा नहीं। ନାଥନ ଡରିକି ପଳାଇଲା ନାହିଁ। यहाँ पर घुटने उसके कांपने नहीं लगे। ତାହାର ଗୋଡ଼ ଥରିଲା ନାହିଁ। जब दाऊद ने बोला who is that man? ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? नातान with the Holy Spirit power। ଆଉ ନାଥନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ नातान ହେଲା। जो दिन रात प्रभु की सुनता और लोगों को देता। ଆଉ ନାଥନ ଗଣୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। नातान सुन के कहता है ନାଥନ ଶୁଣିକି କହୁଛି you are the man। ଏ ମୁଁ ତୁମେ You are the man। ତୁମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, You are the sinner। ତୁମେ ପାପୀ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, और भाई भौणी ମାନେ कभी परमेश्वर के दास आकर चेतावनी देते हैं ऐसे कुछ कन्वेंशन के माध्यम से, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି। कभी भी वाक्य लगता है मेरे दिल के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, हम उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। ଆଜି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହାକୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ନାହିଁ। मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବେ दाऊद सुनकर चक्कर खाया होगा तो पहले ଆଉ ଦାଉଦ ଶୁଣିକି ତ ଘାବରା ହେଇଯାଇଥିବ। बोला हे नातान तेरे को मुझे बोलने के लिए हिम्मत कहाँ से मिली? ଭାବୁଥିବେ ହେ ନାଥନ ମୋକେ କହିବାକୁ ତୋର ସାହସ କୋଉଠୁ ରହିଲା? हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जो प्रार्थना करता, जो परमेश्वर के सुनता, वो हिम्मत वाला बन जाता है। ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଶୁଣେ ସେ ସାହସିକ ଅଟେ। हालेलुया। जो परमेश्वर की सुनता, उसकी मानता, वो इंसान बोल
बोल्ड बन जाता है। ଆଉ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନନ୍ତି ସେ ସାହସିକ ହୁଏ। पाप में जिंदगी जीने वाला इंसान बोल्ड हो जाता है, लेकिन जो पाप से नफरत करता है वो इंसान बोल्ड हो जाता है। ଆଉ ପାପରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକ ସେ ଆଉଟ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାପଠାରୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସାହସିକ ହୁଅନ୍ତି। जब नाथान ने बोला यू आर द मैन, ଯେତେବେଳେ ନାଥନ କହିଲା ତୁମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, दाऊद थोड़ी देर अपने सिर हिला, ओह माय गॉड, इतने दिन से मैं पाप में जी रहा था, पाप को छुपा छुपा के मैंने कोशिश किया है, हे दादा रे मुंह तो मोर ही गया, सब कुछ ओपन हो गया। उसने बोला हाँ मैंने पाप किया है। ଦାଉଦ ଟିକେ ସମୟ ରହିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡେଇ ଗଲା, ଏ ବାବା ରେ ମୋରା ଗଲା ରେ ମୋର ବିଷୟ କହିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି। जब वचन के द्वारा वचन से बातें करता है, आप सिर खुजाओ पैर खुजाओ खुजली कुछ भी करो, पाप आपकी जिंदगी में है, आपको मरना ही पड़ेगा। ଆଉ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହଲାନ୍ତୁ କି ମୁଣ୍ଡ ହଲାନ୍ତୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଅଛି ତେବେ ମରିବାକୁ ପଡିବ। नो मोर एक्टिंग। ଆଉ କିଛି ଅଭିନୟ ନାହିଁ। हालेलुया हालेलुया। ये राजा दाऊद है, उसको पता है एक्टिंग कैसे करना है। ରାଜା ଦାଉଦ ଜାଣିଥିଲା ଅଭିନୟ କେମିତି କରିବା। जब एक बार साउल उसको मारने के लिए जा रहा था, ଥରେ ସାଉଲ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। परमेश्वर के भवन में छुप गया, बावला बन गया, हिंदी में लिखा पागल बन गया। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଭବନରେ ଲୁଚି ଗଲା ଆଉ ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। He knows how to act, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି କେମିତି ଅଭିନୟ କରିବା। good acting। ଆଉ ସେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରେ, लेकिन आपकी एक्टिंग ज्यादा देर नहीं चलेगी। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନା। फिल्म स्टार सितारे हो, सुपरस्टार हो या 5 स्टार हो, आपकी एक्टिंग ज्यादा भी चलने की नहीं है। एक्टिंग क्रॉस होने का समय आ रहा है, वो यीशु मसीह की जय। ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ମର ଅଭିନୟ କରିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେତେ ହଲିଉଡ ବଲିଉଡର ହିରୋ ହେଉଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ କହିବା ବୋଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीह की जय। चर्च एक ऐसा स्थान है, नो मोर एक्टिंग। ମଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ Hallelujah. ସେଇଠି ଅଭିନୟ ଚଳିବ ନାହିଁ। मिनिस्ट्री इज नॉट एक्टिंग। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନୟ ନୁହେଁ। हमारे जिंदगी में किसी भी तरह का यदि पाप है और आप ऐसा जी रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं कि यू आर द मोस्ट होली पर्सन इन द चर्च, दैट मींस यू आर डिसीविंग योरसेल्फ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନିଜେ ଅନେକ ପାପ କରି ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଭଣ୍ଡ ଆଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। Stop acting and start activeness। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ। Hallelujah। ହାଲେଲୁୟା। Stop acting in the ministry and do the ministry with active mind। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିନୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ମନ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସେବା କରନ୍ତୁ। जब दाऊद को पता चला अब मेरा पाप तो ज्यादा छुप नहीं सकता, इसने सब कुछ मुझे बोल दिया है, हे परमेश्वर मैं क्या करूं। आखिर में नाथान से बोला, नाथान मैंने पाप किया है, मैं मानता हूं मैंने पाप किया, अब मैं क्या करूं मुझे बताओ। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ପାପ ତ ଦେଇ କହିଦେଇଛି, ଶେଷରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ ନାଥନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି, ହେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି। जब आप में पाप में जीते हैं, कोशिश मत करें एक्टिंग करने के लिए। आपको लगता है आपका काउंसलर, आपका पासवन, आपका लीडर, आपको जो भी सीनियर भाई बहन जो मसीह में मजबूत हैं, उनके पास जाकर उनके सामने अपने पापों को बताए, उन विश्वास योग्य लोगों को बताए। सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, उनके माध्यम से आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या करना है करके। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ, ପାପ ପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। लोगों को खेती बाड़ी में जो नुकसान होता है उसकी बड़ी चिंता होती है। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜମିରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗେ। लोगों को बैंक बैलेंस कर्ज लोन में नुकसान होता है, बहुत हानि हो जाती ଆଉ है। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆଉ ଉଧାର ଲାଗିଥାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଉଠାନ୍ତି। कोई पढ़ाई में फेल हो जाता है, उनको लगता है मेरे जिंदगी का सबसे नुकसान हो चुका है। ଯେବେ ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେ କହିଥାଏ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଅଛି। लेकिन आपको पता है जब हमारे आत्मिक जिंदगी में पाप आता है, हमारे जो वर्ल्ड थिंग से ज्यादा नुकसान पाप में जीवन जीने से होता है। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଜଗତଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେବା ଜାଗା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଆସିଯାଏ। जब दाऊद के सामने नाथान ने उसके पापों को प्रकट कर दिया, ଦାଉଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଥନ ତାର ପାପକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା। उसके बाद दाऊद ने सोचा
नो मोर हाइडिंग, ଆଉ ଦାଉଦ ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଉ ଲୁଚାଇବି ନାହିଁ, और लुचाई भी नहीं, ଆରି ନାହିଁ ଲୁଚାଇ, मैं लिखे भी, ମୁଁ କହିବି, लिखूंगा। ମୁଁ ଲେଖିବି। और उसने लिखना शुरू किया Psalms 51, ଆଉ ସେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 51। और उसने जो कुछ पाप किया था रिटर्न करके दुनिया को, विश्व को बताना चाहता था कि मैंने कौन से पाप किए और कैसे पाप किए और पाप कर कर कैसे उसके निकट पहुंच गया। ସେ ପାପ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ କେମିତି ପାପ କଲା, କଣ ପାପ କଲା, କାହା ସହିତ ପାପ କଲା, ସେ କହିଲା। जब मैं उद्धार में आया, ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ଆସିଲି, मैं बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए गया पठानकोट पंजाब। ପଠାନକୋଟ ପଞ୍ଜାବରେ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଗଲି। नियर अबाउट 2 ईयर मेरा डिप्लोमा खत्म होने के समय की बात थी। ଆଉ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କଥା। मैं बोलूं, मैं ऐसा पाप में जिंदगी जी रहा था प्रभु मैंने इससे पहले। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲି। मैं हर एक सैटरडे भजन बलि की पूजा करता था। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ବଜରଙ୍ଗବଲିର ପୂଜା କରୁଥିଲି। हर एक सोमवार शंकर की पूजा करता था। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶଙ୍କର ପୂଜା मैं କରୁଥିଲି। एक ब्राह्मण फैमिली से आता, इस वजह से धार्मिक गतिविधि में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ଆସେ, ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। सैटरडे मेरे बड़े भाई के साथ हम लोग रामायण पढ़ा करते थे। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ମୋର ବଡ ଭାଇ ସହିତ ରାମାୟଣ ପଢୁଥିଲୁ। बहुत धार्मिक किस्म का परिवार से मैं बिलोंग करता ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ପରିବାରରୁ ମୁଁ ଆସେ। हूं। लेकिन प्रभु में आने के बाद କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଲା ପରେ उद्धार पा लिया, बपतिस्मा लिया, उसके बावजूद भी 2 साल तक ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି। 2 ବର୍ଷ ଯାଏ पाप मुझे छोड़ा नहीं। ପାପ ମୋତେ ଛାଡିଲା ନାହିଁ। मेरे जहाँ जाना जाता पाप मेरे पीछे पीछे आता। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାଉଥିଲି ପାପ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲା। मैं परेशान हो चुका था। ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ एक ହେଇଥିଲି। दिन हमारी एक जो सीनियर जो टीचर थी उसने मुझे बुलाए। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ସିନିୟର ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, वो यूएसए से बिलोंग करती थी। ଆଉ ସେ ୟୁଏସରୁ ଆସନ୍ତି। She was a wonderful counselor, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶକାରୀ, wonderful prayer warrior, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର a ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ, great teacher, ଆଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ। fully dedicated to serve Indian। ଆଉ ସେବା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଲୋକ। दोपहर के क्लास के बाद ଆଉ 2 ପ୍ରହରର କ୍ଲାସ ପରେ काउंसलिंग रूम में मुझे लेकर गई। ଆଉ ସେ ତାର ପରାମର୍ଶ କ୍ଲାସ କୋଠରୀ ନେଲା। थोड़े देर में डर गया, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୟ କଲି। मुझे नहीं पता क्या करने वाली है। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କଣ ସେ କରିବେ। काउंसलिंग रूम में लेकर गई ଆଉ ସେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ରୁମରେ ନେଇଗଲେ। और बच्चन से सिखाना शुरू किया। ବାକ୍ୟରେ ଶିଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 2 ପ୍ରହର 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ करीब 3 घंटा ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା इतना मेरा उसने काउंसलिंग किया। ଏତେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ କଲି। मैं उस समय तक एक्टिंग में जी रहा था। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଭିନୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲି। उसने मुझे बिब्लिकल काउंसलिंग किया। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଇବଲରୁ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ उसने କଲେ। सारे उन पापों को लिखवाया जो मैंने प्रभु आने से पहले किया था। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଲେଖିବାକୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି। उसने मुझे एक पेपर भेज दिया। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପେପର ଦେଲି। कम से कम 18 प्रकार के पापों को बहुत रात में मुझे याद दिलाया। उस पर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 18 पाप। ଆଉ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସମୟରେ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏମିତି ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ 18 ପ୍ରକାର ପାପ କରିଥିଲି। 1 2 3 4 ବୋଲି ଲେଖିଛି। उसने और बोला मंगल प्लीज रिमेंबर is there any hidden sin in your life? ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ହେ ମଙ୍ଗଲ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକା ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ ପାପ ରହିଅଛି କି ତୁମ ଜୀବନରେ। मैंने याद कर करके 18 पाप लिखे। ମୁଁ ମନେ ପକାଇକି 18 ଗୋଟି ପାପ ଲେଖିଲି। वो जो टीचर है एक डब्बा, एक एल्युमिनियम का डब्बा लेके चलती थी हमेशा, ଆଉ ସେ ସର୍ବଦାସ କୋଲକାତାରେ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ଡବା ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ। और एक माचिस। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଚିସ୍ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଧରି ଯାଉଥିଲେ। उसने सारे पाप लिखवाए। ସେ ସମସ୍ତ ପାପ ଲେଖିଲା। उसने बोला फाड़ो। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଫାଡ଼ି ଦିଅ। फाड़ा। ମୁଁ ଫାଡ଼ିଲି। उसने डब्बा खोला। ସେ ଡବା ଖୋଲିଲେ। बोले इसमें डाल दो। ସେ କହିଲେ ଏଠି ପକାଅ। उसमें मैंने डाल दिया। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ପକାଇଦେଲି। माचिस में उसने आग लगा दिया। ଆଉ ମାଚିସ୍ ଲଗେଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। जब आग निकल चुकी, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଜଳିଗଲା, उसने ढक्कन बंद कर दिया। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢାଙ୍କିଦେଲେ। उसने बोला आग बंद करो। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ मैंने କର। आग बंद किया। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି। उसने मेरे सिर में हाथ रखे प्रार्थना ମୋ किया। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। मेरे जिंदगी का कम से कम 25 साल का पाप उसने यीशु के नाम में तोड़ना शुरू किया। ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା 25 ବର୍ଷର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ और ଲାଗିଲି। जैसे जैसे वो प्रार्थना कर कर के पाप तोड़ी थी, वैसे वैसे मेरे हाथ पांव आंख कान नाक ढीले 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 होते जा रहे और मैं आत्मिक रूप में और मजबूत होते जा रहा था। ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ମୋର ପାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ। ମୋର ଆଖି କାନ ନାକ ସବୁ ଢିଲା 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 ହାଲକା ଲାଗୁଥିଲା। मैं 3 घंटे पहले बड़े बोझ के साथ, बड़ी व्याकुलता के साथ अंदर गया था। ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବେ ବହୁତ ବୋଝ ସହିତ ବ୍ୟାକୁଳ
ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି लेकिन 3 घंटे बाद शाम को 5 बजे କିନ୍ତୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା जब 5ଟା उस ସମୟରେ हॉल के बाहर में आया, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି आप यकीन नहीं मानेंगे, पुराना मंगल डब्बे में घुस गया, नया मंगल निकल के बाहर आ रहा था। ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ Hallelujah. ପୁରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ନୂଆ ମଙ୍ଗଳ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ No more acting। ଆଉ ଅଭିନୟ ନାହିଁ चर्च में एक्टिंग नहीं चलेगी, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଭିନୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ कॉलेज में एक्टिंग नहीं चलेगी, ବାଇବଲ କଲେଜରେ ଅଭିନୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ सेवाकाई में एक्टिंग नहीं ସେବା चलेगी। କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାଟ ଚାଲିବ ନାହିଁ मान ले पापों को, ଆଉ ନିଜର ପାପକୁ ମାନି ଦିଅନ୍ତୁ छोड़ दे पापों को, ପାପକୁ ଛାଡି ଦିଅ रिजेक्ट द sin ଆଉ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର and love the person who has forgiven our sin। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଯିଏକି ଆମର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି दाऊद ने बेचा, let my sin be published and written by the people of the world। ଆଉ ଦାଉଦ ଚାହିଁଲେ ମୋର ପାପ ପ୍ରକାଶନ ହଉ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ उसने 51 साम लिख दिया। ଆଉ ସେ 51 ଗୀତ ସଂହିତା वहाँ ଲେଖିଲେ कम से कम 10 प्रकार के नुकसान। दाऊद कहता है मैं राजा तो था, पद में था, पोस्ट था, पोजीशन था, लेकिन अंदर अंदर मुझे भारी नुकसान हो रहा था। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦାଉଦ 10 ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାଉଦ ତ ଥିଲି ଭଲ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ସେଠି ଲେଖିଅଛନ୍ତି आप शायद आज रात के समय बाहरी रूप से बढ़िया टिप टॉप दिख रहा होगा, टिकटॉक कर रहा होगा, लेकिन अंदर से शायद आत्मिक रूप में, मानसिक रूप में कहीं न कहीं पाप आपको छू रहा होगा। आज रात के समय वो चुभन हमेशा के लिए यीशु के नाम में दूर होने पाए। ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନେ ବାହାର ରୂପରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ଥିବ ପାପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରୁ 51 verse 2 Psalms। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 51 2 मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर ମତେ ମୋ ଅପରାଧ ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। ମୋ ପାପରୁ ମତେ ସୂଚି କର एक राजा ଗୋଟେ ରାଜା बहुत ऊंचे सियासत पर बैठकर यहूदा इस्राएल दोनों के ऊपर अधिपति के रूप में राज्य कर रहा है। ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ସେ ବିରାଜମାନ ହେଇକି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଜିହୁଦା ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା लेकिन उसके जिंदगी में अधर्मीपन घुस चुकी है, ତାହା ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା उसका मन अशुद्ध हो चुका है। ତାହାଙ୍କର ମନ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା मेरे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରମାନେ हम ऐसे चुंबकीय संसार में रहते हैं, अपनी ओर ज्यादा में आकर्षित करता है। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସଂସାରରେ ବାସ କରୁଛୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ This world has a great magnetic power। ଏହି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି जितना आप धर्मीपन जीने के लिए कोशिश करेंगे, संसार आपको अधर्मीपन में ढकेलेगा। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେତିକି ସଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ अधर्मी इंसान अपने आप बन जाता है, लेकिन धर्मी बनना पड़ता है। ଅଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ପଡେ मेरी बात समझ रहे हैं? ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି हालेलुया। अधर्मी इंसान अपने आप बन जाता है, लेकिन धर्मी बनना पड़ता है। ଅଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ପଡେ आज रात के समय उन बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, मेरे दोस्तों से कहना चाहता हूँ, आपके जिंदगी में याद करें कब आप धर्मिकपन का जीवन जी रहे थे और कब धर्मिकपन हटकर अधर्मिकपन में आप जीवन जीना शुरू ଆଜି करते ରାତ୍ର हैं। ସମୟରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ମା ମାନେ ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ କେଉଁ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଅଧର୍ମ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, दाऊद मुझे मेरे पाप से शुद्ध कर। ଦାଉଦ କହନ୍ତି ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାପରୁ ମୋତେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର ड्यू टाइम उसका पता चल गया वो पापी है। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ପାପୀ ଅଟେ आज कल परसों ये ड्यू टाइम हमारे लिए है, हमें पता चलना है हम कहाँ कहाँ पाप में जिंदगी जी रहे हैं। ଆଜିର ସମୟ କାଲିର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାପମୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ परमेश्वर समय का सृजन का परमेश्वर है। ପରମେଶ୍ୱର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରମେଶ୍ୱର आज ଅଟନ୍ତି। और कल और परसों समय प्रभु ने हमें दिया है, हमें से जिस किसी की भी जिंदगी में पाप छुपा है और हम एक्टिंग कर रहे हैं, होने दे ये 3 दिन में हम उस नकली जीवन से बाहर निकलकर असली जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। ଆଜି କାଲି ପରଦିନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ପାପରେ ରହିକି ଅଭିନୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ଯେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାପରୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ दाऊद कहते जमाने
दिन में मैं नाचूंगा परमेश्वर के लिए, मैं गाऊंगा परमेश्वर के लिए। अब उसका नाचना गाना आराधना करना सब कुछ कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अंदर में पाप छुपका है। ଆଉ ଦାଉଦ ତା ଯୌବନ ସମୟରେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟରେ ଗାଇବି ନାଚିବି, କିନ୍ତୁ ପାପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନାଚ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେଇଅଛି, କାହିଁକି ନା ତା ଜୀବନରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। पास्टर जी बोल रहे थे एक बात, ଆଉ କେହି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, बीमार इंसान स्वर्ग जा सकता है लेकिन पाप इंसान स्वर्ग जाना मुश्किल है। ବେମାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। हाड़ मांस का, दिल दिमाग का, किडनी का बीमार आपको है, सहन कर लो, स्वर्ग चले जाओगे। लेकिन पाप करके मरोगे, स्वर्ग जाना असंभव होगा। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ମାଂସ ଶରୀର ହୃଦୟର ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ସହି ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାପରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। पाप कन्फेस करना हमारा पर्सनल वर्क है। ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମ ଅଟେ। दाऊद कहता है परमेश्वर पाप के कारण मेरा मन पहले जो शुद्ध था अभी अशुद्ध हो चुका है। ଆଉ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ପାପ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। वर्स 3 ଆଉ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ उसको पहले जो नुकसान हुआ वो कहता है मेरा मन अशुद्ध हो चुका है, मैं अधर्मी बन चुका हूँ। ଆଉ ଯୋଉଟାକି ତାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ମୋର କ୍ଷତି ହୋଇଅଛି। वर्स 3 ଆଉ ତିନି କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଓ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। दाऊद कहता है Psalms 34 वर्स 1 में, ଆଉ ଦାଉଦ କହୁଛି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 34:1 ରେ मैं यहोवा की स्तुति निरंतर करता रहूंगा। ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନିରନ୍ତର କରିବି, मेरे मुख से उसकी स्तुति निरंतर होती रहेगी। ମୋ ମୁଖରେ ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ ହେବ। एक जमाने में दाऊद कहता है मेरे मुंह से, मेरे दिल से निरंतर स्तुति होती रहेगी। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଦାଉଦ କହୁଥିଲା ମୋ ମୁଖରେ ନିରନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହେବ, लेकिन वर्स 4 में कहता है କିନ୍ତୁ 4ରେ କୁହେ मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ଆଉ ମୋ ପାପ ନିରନ୍ତର ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୁହେ। मेरे भाइयों बहनों, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, मेरे दोस्तों, ମୋ आज ସାଙ୍ଗମାନେ, रात के समय आपके दृष्टि में निरंतर आपका पाप बना है, तो आज रात के समय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके दृष्टि में निरंतर आपका पाप नहीं, पाप को दूर करने वाला यीशु मसीह बनने रहना चाहिए। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରନ୍ତର ପାପ ଆସୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତର ପାପ ନ ଆସି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। यीशु मसीह पापियों से प्यार करने और उनका उद्धार करने आया है, पापियों को नष्ट करने के लिए नहीं आया है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଲେ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନଥିଲେ। यीशु मसीह के संसार में आने का उद्देश्य यदि आप पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 45 पे लिखा है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାର୍କ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 44ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। यीशु मसीह बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने और लोगों की सेवा करने के लिए आया है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଓ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। मैं कैसे खानदान से बिलोंग करता हूँ, मेरे जितने भी लोगों के साथ मैंने जिंदगी जीने के लिए कोशिश किया, सबने सेवा करवाया, लेकिन जब मैंने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया मुझे पता चला एक गुरु है, एक महात्मा है, एक ईश्वर नासरी है जो मेरी सेवा करने के लिए आया है। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଂଶର ପିଢ଼ିରୁ ଆସେ ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କଲି, ସେବା ଲୋକମାନେ କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ସେବା କରାନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେବା କରନ୍ତି। आमीन ଆମେନ୍। बोल यीशु मसीह की ଜୟ। जो गुस्सा बोले हालेलुया। ଯେମାନେ ରିସାରେ ଆଶା ଥାଇମାନେ କୁହ ହାଲେଲୁୟା। पाप के कारण इंसान गुस्सेला हो जाता है। ପାପ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ରାଗିଯାଏ। बुझ लो कि नहीं? ବୁଝିଲାସ୍ କି ନାହିଁ? बुझ सकते कि नहीं? उसके ହେଲା କାଏ? पाप के कारण मनुष्य बहुत गुस्सेला हो जाता है। ପାପ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ରାଗେ। पाप के कारण मनुष्य आत्मिक इंसान जो व्यक्ति है सिर उठा के बात नहीं कर पाएगा, सिर झुका के बात करेगा। ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇକି କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି କଥା ହେବ। आप फर्क समझ सकते हैं नाथन दाऊद के बीच में। ଆପଣ ମାନେ ଫରକ ବୁଝିପାରିବେ ନାଥନ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। हालेलुया ହାଲେଲୁୟା। दाऊद कहता है ଦାଉଦ କହେ प्रभु जी मैं तो पहले निरंतर तेरे दृष्टि में रहता था, लेकिन क्या करूं मेरे से गलती हुई, मैंने पाप किया। अब पाप मुझे कहता है दाऊद तू पापी है, दाऊद तू पापी है, दाऊद तू पापी है। अब क्या करूं खुदावन
मेरी दृष्टि में निरंतर पाप बन रहता है, कैसे इससे मुझे छुटकारा मिलेगा? हे परमेश्वर मु तुम दृष्टिरे आम दृष्टि निरंतर मु तुम प्रशंसा करुथिली किंतु मो जीवन में वर्तमान पाप आसी अछि मु कोन करिबि परमेश्वर मते तुम साहाय्य करो। तीसरा नुकसान उसको हुआ, वही है उसके दृष्टि में उसका पाप निरंतर उसको अंदर जो है पिंच कर रहा है। यू आर सीनर, यू आर सीनर, यू आर सीनर, रिपेंट रिपेंट रिपेंट। आ तृतीय विषय ଏହା ହେଉଛି ତା ଜୀବନରେ ତାକୁ ପାପ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଛି ତୁ ପାପୀ ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। हम लोग जितने ज्यादा सीनियर विश्वासी बन जाते हैं, ଆମେ ଯେତିକି ଅଧିକ ସିନିୟର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉ उतने ही सीनियर सीनर हो जाते हैं। ସେତିକି ଆମେ ବରିଷ୍ଠରୁ ବରିଷ୍ଠ ହେଇଯାଉ। बुझलो कि नहीं? ବୁଝିଲାସ୍ କି ନାହିଁ? Do not become senior sinner, ଆପଣ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ପାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, nor become junior sinner। ଆପଣ ମାନେ ସାନ ପାପୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। पाप की कोई डिग्री नहीं होती है। ପାପର କୌଣସି ସାର୍ଥକ ନଥାଏ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बच्चा? କେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁଅଛନ୍ତି? बोले प्रभु यीशु मसीह की ଜୟ बोले यीशु मसीह की। ଜୟ। तीसरा जो उसको नुकसान हुआ वो कहता है निरंतर पाप मेरे दृष्टि में बना है परमेश्वर। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ତାର ଯୋଉଟା କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ନିରନ୍ତର ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ ଲାଗି ଅଛି। चौथा जो उसको नुकसान हुआ, ଚତୁର୍ଥ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଲା Please read verse number 8। ତାର 8ରେ ଲେଖାଯାଏ ମତେ ଆହ୍ଲାଦ ଓ ଆନନ୍ଦଜନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଅ ତହିଁରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଭଗ୍ନ ଅସ୍ଥି ସବୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବ। कहता है दाऊद मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। ସେ କହୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଆହ୍ଲାଦ ଓ ଆନନ୍ଦଜନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣା। कारण क्या है? पाप के कारण मेरा हर्ष चला गया है, କାହିଁକି ନା ତାର ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ଲାଦ ଚାଲି पाप ଯାଉଛି, के कारण मेरी आनंद चली गई है, ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଆନନ୍ଦ ଚାଲି ଯାଉଛି, पाप के कारण मेरी हड्डियां टूट चुकी है, ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ पाप ହୋଇଯାଉଛି, के कारण अब आराधना करने का मन नहीं करता, ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା पाप ହଉନାହିଁ। के कारण पहले मैं आनंद के साथ नाचता गाता खुशी से, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया है। ଆଉ ଆଗରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଥିଲି ଗାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ପାପ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ବିନଷ୍ଟ मेरे ହୋଇଯାଉଛି। भाइयों बहनों, ମୋ ଭାଇ आज ଭଉଣୀମାନେ रात के समय क्या आपका आनंद चला गया है? କଣ ଆଜି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଚାଲି ଯାଉଛି କି? आपका हर्षोल्लास चला गया है? ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦ ଚାଲି ଯାଉଛି କି? पाप में रहकर आपकी हड्डियां या आपके आत्मिक जीवन में कहीं सूखापन तो नहीं आ गया है? ପାପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି କି ଶୁଖି ଯାଇଅଛନ୍ତି କି? नीति वचन 17 का 22 में लिखा है, ଆହିତ ବୋଧେ 17-22 ଲେଖା ଅଛି मन की आनंद अच्छी औषधि है, ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ, परंतु मन निराश होने के कारण हड्डियां टूट जाती है। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥି ଗୁଡାକ ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଏ। मैं यहाँ पर फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों हड्डी की बात कर रहा ଆଉ हूँ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆତ୍ମିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥି ବିଷୟରେ କହୁଛି। आज रात के समय कितनी लोगों की स्पिरिचुअली हड्डी ब्रेक हो चुकी है, ଆଜି ଏହି ରାତ୍ର ସମୟରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି, कितने लोगों की प्रार्थनाओं की वेदी ढा चुकी है। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଦୀ ଭାଙ୍ଗି ଅଛି। जो आनंद, जो खुशी, जो हर्षोल्लास के साथ पहले आप आराधना प्रार्थना करते थे, अभी दिन प्रतिदिन उसका परसेंटेज कम होते जा रहा है। ଆନନ୍ଦରେ ଆହ୍ଲାଦରେ ଯେତିକି ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତାହା କମି ଯାଉଅଛି। मैं हमेशा क्वायर मेंबर्स, वर्शिप लीडर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ମୁଁ କୋୟର ମେମ୍ବର୍ସ ୱାର୍ସିପ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। you are leading us in a wonderful manner in the worship, ଆଉ ଆରାଧନା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନାକୁ ଲିଡ୍ you କରୁଛନ୍ତି। are playing wonderful keyboard, guitar and drum, everything, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିବୋର୍ଡ ଗିଟାର ପେଡ ସୁନ୍ଦର ବଜାଉଛନ୍ତି। but what happens after worship? କିନ୍ତୁ ଆରାଧନା ପରେ କଣ ଘଟୁଅଛି? माइंड कहाँ है? ମନ କୋଉଠି? दिमाग कहाँ है? ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଉଠି? दिल कहाँ है? ହୃଦୟ କୋଉଠି? सब मोबाइल में है। ସବୁ ମୋବାଇଲରେ। जितने नौजवान आराधक है, संचालक है, कीबोर्डिस्ट है, ड्रमिस्ट है, गिटारिस्ट है और भी आर्टिस्ट है, सबसे कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, डू नॉट ट्राई टू एक्ट। ଆଉ ଯେତେ ନୂଆ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆରାଧକ ଲୋକମାନେ ବଜାଇବା ଲୋକମାନେ ବେଡ ବଜାଅ କିବୋର୍ଡ ଗିଟାର ଯାହା ମଧ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ସହିତ ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହୁଅଛି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। डू नॉट एक्ट। ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। आप कोई भी क्यों ना हो, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ये में जीने वाले आप कोई भी क्यों ना हो, जातीय प्राचीन हो, पासवान हो, मिशन के लीडर हो, ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग हो, XYZ, anybody can, do not try to act, try to
live real life. ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଲାଇବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟମୟ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। एक्टिंग करेंगे भी तो उसका हिस्ट्री कुछ दिन बाद खुल जाएगा। ଯଦି ଅଭିନୟ କରିବେ ମଧ୍ୟ ତାର ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରି ପଡିବ। खुलेगा कि नहीं खुलेगा? ବାହାରିବ କି ନାହିଁ? अभी नहीं तो बाद में तो खुलेगा। ଏବେ ନାହିଁ ତ ପଛେ ଖୋଲିବ। अपने आप नहीं खोलेगा लेकिन नाथान आके खुलाएगा। ଆପେ ଆପେ ବାହାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାଥନ ଆସି ଖୋଲାଇବ। इसलिए ऐसे नाथान को आने की अनुमति दे। ତେଣୁକରି ଏମିତି ନାଥନକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି आज ଦିଅନ୍ତୁ। और कल और परसों 3 दिन के लिए नाथान भी आपके पास में आए। ଯଦି ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ଯଦି ନାଥନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବେ दिल खोले, ହୃଦୟ ଖୋଲନ୍ତୁ दिमाग खोले, ମସ୍ତି ଖୋଲନ୍ତୁ मन खोले, ମନ ଖୋଲନ୍ତୁ वचन को जितना हो सके ग्रहण करे, ग्रहण करे, ग्रहण करे। ବାକ୍ୟ ଯେତେ ହଉଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ और କରନ୍ତୁ। आपको लगता है कि मैं भी उसमें से एक बंदा हूँ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭିତରୁ ଜଣେ Repent, ମନ ଫେରାନ୍ତୁ repent. ଫେରାନ୍ତୁ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Do not act, rather you should repent. ଆଉ ମନ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। उसको बड़ा नुकसान हो गया, ତାର ବଡ କ୍ଷତି उसका ହେଲା आनंद चला गया, ତାର ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଗଲା उसकी खुशी चली गई, ତାର ଖୁସି ଚାଲିଗଲା उसकी शांति चली ତାର गई, ଶାନ୍ତି ଚାଲିଗଲା उसका वैभव चला ତାର गया। ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଗଲା न, वैभव, 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 क्या बोलते हैं उसका? प्रेस्टीज, प्रेस्टीज चला गया। ତାର ତାର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଗଲା वो उसका रिस्पेक्ट चला गया। ତାର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଗଲା। हम लोग बड़े बोदर करते हमारा फिजिकल रिस्पेक्ट में। ଆମେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆମ ଶାରୀରିକ ସମ୍ମାନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଉଠାଇଥାଉ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज के समय में ଏଇ ରାତ୍ର ସମୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ फिजिकली आपको मान सम्मान मिले या न मिले, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ आत्मिक सम्मान कभी भी घटना नहीं चाहिए, न लोगों के सामने न परमेश्वर के सामने। पहले ଆତ୍ମିକ बताइए। ସମ୍ମାନ କିଏ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଲଗୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ। आपके आत्मिक जीवन का पैराग्राफ अर्थात ग्राफ बना के रखना है। ग्राफ को कभी भी लोड़ा करने मत देना। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବଜାଇକି ରଖନ୍ତୁ କେବଳ ତାକୁ ତଳକୁ ଖସାନ୍ତୁ ନାହିଁ। अपने परिवार के चारों ओर उस आत्मिक भाने को बांधे रखना। शैतान कभी भी हमला करके या आपको बेला फुसला के आपके परिवार की सीमा में अंदर घुसना नहीं चाहिए। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆତ୍ମିକ ରୀତିରେ ବାଡ଼ ଦେଇକି ରଖନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପରିବାରକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। करीब 3 महीने पहले, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବେ सॉरी, करीब 4 महीने पहले 4 ମାସ ପୂର୍ବେ दिल्ली के जाने माने प्रचारक जिनका नाम है अरुण थॉमस। ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଚାରକ ଅରୁଣ ଥୋମାସ अरुण थॉमस के चर्च में करीब 100 डेज का फास्टिंग पीरियड चल रहा था। ଅରୁଣ ଥୋମାସଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ 100 ଦିନର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିଲା। उसमें से एक दिन वो हमारे पिजंगल के पास गए, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ବିଜୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗଲେ एक से पूछने के लिए कि कैसे शैतान चर्च में अटैक कर रहे हैं इन दिनों में। ଆଉ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କି ପ୍ରକାର ଶୈତାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାହା ପଚାରିବାକୁ ଗଲେ। पिजंगल ने उनको बेस्ट लिविंग एग्जांपल दिया। ଆଉ ବିଜୟଙ୍କ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। यदि थियोलॉजी भाषा में बोले तो केस स्टडी के बारे में बताया। ଆଉ ଯଦି ଥିଓଲୋଜି ଭାଷାରେ କହିବି ବୋଲେ ସେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ବିଷୟରେ କହିଲେ। इंडिया में वो पास्टर रहती, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ରବି उनके चर्च में करीब 10,000 विश्वासी हैं। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ 10,000 ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି। बड़ी भीड़। ବଡ ଭିଡ। क्या हुआ? क्या हुआ? କଣ ହେଲା? एक दिन ଗୋଟିଏ ଦିନ एक सुंदर कन्या, थैंक यू, एक सुंदर कन्या ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା चर्च में आई। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲା। पहले से चर्च में सुंदर सुंदर कन्या है, ଆଗରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ। एक के साथ और एक 10 हो गई। ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗେ ଆରି ଗୋଟେ और उसने बहुत अच्छे तरीके से कम से कम 6 महीना चर्च जाना शुरू किया। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ 6 ମାସ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। उसके बाद ତାପରେ उसका जीवन को देखकर चर्च कमेटी ने एक डिसीजन लिया। ଆଉ ତାହା ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଚର୍ଚ୍ଚର କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ उसको हमारे चर्च का मेंबरशिप देंगे। ଆମେ ତାହାକୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଦେବା ରଖିବା। लोगों ने बोला ओके फाइन। ଆଉ ଲୋକ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। 2 महीने बाद 2 ମାସ ପରେ लड़की को बुलाया, ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ। बोला टेल योर नेम एंड योर फ्रॉम वेयर यू आर। ଆଉ ତୁମ ନାମ କୁହ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଛ କୁହନ୍ତୁ। उसे सब कुछ एक्सप्लेन ସେ किया, ସବୁ କିଛି କହିଲେ लेकिन कुछ छुपाया, पूरा नहीं बताया। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୁଚାଇଲେ ପୁରା କହିଲା ନାହିଁ। 9 महीने बाद 9 ମାସ ପରେ she was baptized। ଆଉ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇଲା। उसके बाद ତାପରେ 1.5 साल बाद ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ इतनी एक्टिव थी, ଆଉ ସେ ଏମିତି ଏକ୍ଟିଭ उसका ଥିଲା। माइंड दिल इतना क्रिएटिविटी था, ଆଉ ତାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ उसको ଚାଲୁଥିଲା। संडे स्कूल टीचर बना दिया, ତାକୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ବନାଇଲେ। असिस्टेंट संडे स्कूल टीचर। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। कुछ दिन बाद କିଛି ଦିନ ପରେ उसको क्वायर में ले लिया। ଆଉ କୋଏଲରେ ଆଣିଲେ। वो नाचती गाती बढ़िया करती। ସେ ନାଚେ ଗାଏ ବଢିଆ କରେ। उसके बाद ତାପରେ उसको धीरे धीरे माइक दे दिया। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇକ ଦେଲେ। माइक और स्टेज में आ गए। ମାଇକ ରେ ଷ୍ଟେଜ ରେ 3 ଆସିଲା। साल के अंदर में 10,000 लोगों को उसने
उसने अपने आवाज के कंट्रोल में कर लिया। आ 3 वर्ष मध्यरे ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଶବ୍ଦରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲା। 5, 6, 10 साल से चर्च में वर्शिप लीडर है, कोर मेंबर है, उसके आगे झुकने लगे, बोला व्हाट अ वंडरफुल गिफ्ट गॉड हैज ब्लेस्ड यू। आ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୋର ମେମ୍ବର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। बहुत एक्टिव, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ, बहुत बढ़िया प्रार्थना, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା, लेकिन वास्तविक नहीं है। କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ନଥିଲା। उस कलीसिया में एक दिन प्रभु के दास ने फास्टिंग पर डिक्लेयर किया 3 डेज का। ଆଉ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ 3 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଳକ ଘୋଷଣା କଲେ। केरला से किसी प्रभु के दास को चर्च में बुलाया गया। ଆଉ କେରଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଡାକିଲେ। प्रभु के दास आकर फास्टिंग प्रेयर में इन्वॉल्व हो गया। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଳକ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିକି ସାମିଲ ହେଲେ। सुबह से लेकर रात तक फास्टिंग एंड प्रेयर, टीचिंग प्रीचिंग, टीचिंग प्रीचिंग। ଆଉ ସକାଳୁ ନେଇକି ରାତି ଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର। फर्स्ट डे गॉन, पहले दिन चला ପ୍ରଥମ गया, ଦିନ ଚାଲିଗଲା, दूसरा दिन चला ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ गया, ଚାଲିଗଲା, तीसरे दिन के सेकंड सेशन में ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ बहुतात्मा का बहुत जबरदस्त कलीसिया में होने लगा। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। लोग जहाँ थे वहाँ झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लुढ़कने लगे। ଆଉ ଯୋଉ ଯାକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। जो पास्टर थे वो केरला से आए थे, ଯେଉଁ ପାଳକ କେରଳରୁ ଆସିଥିଲେ उनके दिमाग में बहुत आत्मा ने कहा, ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଲେ, और टीम के ऊपर उंगली उठाया, ଟିମର ଆଙ୍ଗୁଠି बोला, ଉଠାଇଲେ। आप में से कोई लड़की जो 3-4 साल पहले चर्च में आई है ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଝିଅ ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଅଛି। और आपके अंदर में कुछ एक्टिंग की आत्मा है, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଭିନୟର ଆତ୍ମା ଅଛି। स्टैंड अप, ଠିଆ ହୁଅ। नो स्टैंडिंग, କିଏ ଠିଆ ହେଲେ ନାହିଁ? स्टैंड अप, ଠିଆ ହୁଅ, खड़ी हो जा, ଠିଆ ହେଇଯାଅ, खड़ी हो जा। ଠିଆ ହୁଅ। एक्टिंग एंड सिटिंग। ଆଉ ଅଭିନୟ କରି ବସିଛି। लेकिन प्रभु के दास ने बोला यू आर द गर्ल, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ। और डर के मारे खड़ी हो गई, ସେ ଭୟ କରି ଠିଆ बोलने ହେଇଗଲେ। लगी हो माय गॉड मेरा पाप अब छुपना मुश्किल है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପାପ ଲୁଚିବ ନାହିଁ, एक्टिंग खत्म। ମୋର ନାଟ ସରିଗଲା। प्रभु के दास ने बोला सामने आओ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ ସାମ୍ନାକୁ वो ଆସ। सामने आ ସେ गई। ଆଗକୁ ଆସିଲା। वो पहले बहुत अच्छे तरीके स्टैंडिंग पोजीशन में गीत गाती, रात करती, लेकिन अभी उसका पोजीशन तक भगाने लगा। ଆଉ ଆଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଠିଆ ହେଇକି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଡାକିଲେ ଆଗୁଆକୁ ଆସି ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାର ଗୋଡ ହଲୁଛି। उसने बोला हु आर यू, ସେ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ? उसने बोला आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ क्यों ସେବକ। तू यहाँ पर आया है? ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଅଛ? उसने बोला मैं तुझे पहचान कर इस चर्च से निकालने आया हूँ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିକି ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। बोला मैंने 3 असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, एक लास्ट असाइनमेंट था। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୋର 3ଟି କାମ ସମାପ୍ତ କରିଅଛି, ଗୋଟେ ଶେଷ କାମ ଅଛି। उसने बोला वो असाइनमेंट क्या है? ସେ କହିଲେ ସେ କାମ କଣ? उसने बोला पहला असाइनमेंट मेरा था बपतिस्मा, वो मैंने ले लिया। ଆଉ ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ଧ୍ୟାନ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଶୁଣନା। ନେବା ହେଇଗଲା। दूसरा असाइनमेंट था क्वायर में आकर वो मैंने आ गया। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କୋରରେ ଆସିଗଲି। तीसरा असाइनमेंट था पास्टर का परिवार में जो इनर सर्कल है उसको तोड़कर उनके फैमिली में जगह बनाना मेरा आखिरी और लास्ट असाइनमेंट था, लेकिन आपने आकर मेरा असाइनमेंट को रोक दिया। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୃତୀୟ ମୋର କାମ ଏହା ଥିଲା ପାଳକଙ୍କର ତାର ଯୋଉ କି ଇନର ସର୍କଲ ଥାଏ ଭିତର କୋଠରୀ, ସେଠି ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବି ଆଉ ଭଗ୍ନ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିକି ମତେ ବନ୍ଦ କଲେ। 10,000 विश्वासियों का पास्टर सुनकर पांव तले जमीन खिसकने लगी। ଆଉ 10,000 ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପାଳକ ସେ ଶୁଣିକି ତାର ପାଦ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, थरथराने लगे, कांपने लगे। ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। You may be the pastor of 10,000, 20,000, but not having the spirit of discerning, then your ministry sometimes can be damaged. ଆଉ ହୋଇପାରେ ଆପଣ 10,000 20,000 ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିବେ, ପାଳକ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମା ଜୀବନର ଦାନ ନାହିଁ, ହୋଇପାରେ ଆପଣ ମାନେ ପଡି ଯାଇପାରନ୍ତି। नंबर के पीछे भागे मत, ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ପରେ ପଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ, नंबर के पीछे भागे मत। ସଂଖ୍ୟା ପଛେ ଦୌଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। पवित्र आत्मा पानी की भूख और प्यास रखे। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ମୋତେ ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷିଲା ହୁଅନ୍ତୁ। उस लड़के ने बोला मेरा आखिरी असाइनमेंट था इस परिवार का इनर सर्कल में जाके हमला करना और पास्टर को अपने प्रेम में फंसाकर मिनिस्ट्री तबाह करना। ଆଉ ସେ ଝିଅ କହିଲା ମୋର ଶେଷ କାମ ଥିଲା ସେ ପରିବାର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଯାଇକି ମୁଁ ଏ ପରିବାରକୁ ଭଗ୍ନ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ପାଳକ ସହିତ ମୁଁ କଣ କରିବାର ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ପୁରାପୁରି ଭଗ୍ନ କରିବାର ଥିଲା। बड़ा नुकसान से प्रभु ने उनको बचाया। ବଡ କ୍ଷତିରୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବଚାଇଲେ। आज रात में आपको लग रहा है कि मेरा जिंदगी, मेरा परिवार, मेरी बीबी, मेरे बच्चे लोग नुकसान की ओर जा रहे हैं, किसको बताऊं, किसको सुनाऊं? आज ठीक समय में सही
में बैठे कि आप प्रभु के दासों को बताएं और आपको उस नुकसान से बचाएं। आज रात्र समय ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋ ପରିବାର ମୋ ଲୋକ ମୁଁ ଖରାପ କ୍ଷତି ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛୁ କାହାକୁ କହିବି ଆଜି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଫେରିକି ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। मेरे पास टाइम बहुत कम है, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ मैं ଅଛି। दो बात बोल के संदेश समाप्त करना चाहता हूँ ଆଉ ଦୁଇଟା ବିଷୟ କହିକି ସମାପ୍ତ आज କରିବି। रात में, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ଆଜି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ आप में କରିବାକୁ से ଚାହେଁ किसी की भी जिंदगी में कुछ ऐसे पाप है जो आपको मजबूर करे, चुप रहे, पीछ कर रहे हैं, लीव इट परमानेंटली। ଆଉ ଆଜି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ପାପ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଟାଣି ଅଛି ସେଇ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। 12 वचन, ତାର 12 अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। ତୁମ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ମତେ ଦିଅ। इंसान उद्धार पाने के बाद उद्धार से वंचित हो सकता है, बाइबल कहती है। ବାଇବଲ କହେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ପରିତ୍ରାଣ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ବାଇବଲ କହେ इसलिए फिलिपी 2:12 में लिखा है, ଏଥିପାଇଁ ଫିଲିପେ ତା 2:22 पौल कहता है कलीसिया से, ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହନ୍ତି अपने अपने उद्धार में बने रहने के लिए निरंतर डरते कांपते प्रयत्न करते जाओ। ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣରେ ଲାଗି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ଭୟ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। उद्धार पा लिया, चर्च में आ गया, आराधना किया, प्रार्थना किया, बढ़िया है, लेकिन उद्धार कब हो जाएगा हमें मालूम नहीं चलेगा। इसलिए डरते कांपते उस उद्धार के अनुभव में बने रहो। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଉ ଜାଣିନାହୁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। मैं ऐसे कितने नौजवान भाइयों से बहनों से सेवकों से मिला है, कई साल पहले उद्धार पाया, कई साल बाद उद्धार खो गया, लेकिन अभी भी एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उद्धार में बने हुए हैं। ମୁଁ ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ଆଉ ଅଭିନୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଲାଗୁଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। उद्धार इज ए लाइफ टाइम प्रोसेस, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ହଉଛି ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ। निरंतर उसमें बने रहना है। ନିରନ୍ତର ସେଇଠି ଲାଗି ରହିବା। बोले हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। तो यीशु हमें उद्धार देने आया है। ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି उसके उद्धार में 100% पवित्र उद्धार है, ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣରେ 100% ପବିତ୍ର ପରିତ୍ରାଣ कोई ଅଟେ। मिलावट नहीं, କୌଣସି ମିଶାମିଶି कोई ନାହିଁ, रुकावट नहीं, କୌଣସି ରହିବା ବିଷୟ कोई ନାହିଁ, एक्टिंग नहीं, କୌଣସି ଅଭିନୟ कोई ନାହିଁ, कपटीपन नहीं। କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। उसका उद्धार सेतमेत का है। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। आज रात में जितने लोग उद्धार नहीं पाया है वो उद्धार ले लीजिए। ये उद्धार पाने के लिए कोई रुपया पैसा चांदी सोना नहीं, ये फ्री में आज रात में उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस गांव में आए हैं। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର ପରିତ୍ରାଣକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଅଛି। पहला पत्रस 1:15 से 18 में लिखा है, ପ୍ରଥମ ପିତର 1ରୁ 15-18 ଲେଖା ଅଛି तुम पवित्र बनो, ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र ତୁମକୁ है। ଆହ୍ୱାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। कलीसिया पवित्र बनने की चेष्टा करें। ମଣ୍ଡଳୀ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। अपवित्र बनना आसान है, लेकिन पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। ଅପବିତ୍ର ହେବା ସହଜ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। अभिषेक पाना आसान है, लेकिन अभिषेक में बंद रहना बड़ा मुश्किल है। ଅଭିଷେକ ପାଇବା ବହୁତ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକରେ ଲାଗି ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। उद्धार पाना आसान है, लेकिन उद्धार में बने रहना बड़ा मुश्किल है। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ବହୁତ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାରରେ ଲାଗି ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। पतरस कहता है 1:18 में कि हमारा उद्धार नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है। ଆଉ 1:18 ଲେଖାଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। हम लोग हर साल मुर्गा बकरा काटा करते थे, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଛେଳି ମେଣ୍ଢି କାଟୁଥିଲୁ गांव की मुक्ति के लिए, गांव के मोक्ष के लिए। ଗାଁର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗାଁର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। रुपया लहू दोनों पानी समान बहता था हमारे गांव में। ଆମ ଗାଁରେ ଟଙ୍କା ଆଉ ରକ୍ତ ପାଣି ଭଳିଆ ବୋହୁ ଯାଉଥିଲା। जो गांव से मैं बिलोंग करता हूँ उस गांव का नाम है कट्टे झरिया। ଆଉ ଯୋଉ ଗାଁରୁ ମୁଁ ଆସେ ସେ ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି କାଟେଝରିଆ। अभी आप गूगल में टाइप करेगा वो गांव का नाम गूगल में नहीं मिलेगा आप लोगों ଯଦି को। ଏବେ ଯଦି ଗୁଗଲରେ ଟାଇପ କରିବେ ସେ ଗାଁର ନାମ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। मैं आज से 44 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ଆଜିଠାରୁ 44 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ जहाँ କଥା मेरा କହୁଛି। जन्म हुआ है। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛି अभी गांव का अस्तित्व व्यक्तित्व ना गूगल में है और ना एमपी में है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗାଁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନା
भूल रे अछि ना सत्य एमती अछि लहू पैसा दोनों पानी समान हो गांव में बहा गांव के उद्धार के लिए। आ पूरा पूरी रक्त आउ पानी पैसा पानी भलिया पूरा गार उधार पे बहाइलु लेकिन ये दोनों चीजें गांव को उद्धार नहीं कर पाई परंतु गांव को कंगाल कर दिया। किंतु ए दुईटा विषय गाँ को परित्राण दे परला नै किंतु गाँ को कंगाल करला। आपके साथ पैसा और लहू दोनों अपने बहाने के लिए कोशिश किया होगा आपण माने आपण अनेक थोड़ा टंका आ रक्त बहाई थिबे लेकिन जिसका लहू हमारे लिए बहा है वो उसको एक बार आप कोशिश करके अपना कर देखिएगा। आओ जे रक्त आपण पाई बहाइले टिके ताकू निचर करबे को चेष्टा करंतु। बिहार एक जमाने में बड़ा खतरनाक राज्य था। आ बिहार जवान गुटथरो बहुत भयंकर राज्य था। भयंकर खतरनाक अंधविश्वास से भरा था। बहुत खतरनाक अंधविश्वास से परिपूर्ण थिला। माताएं अपने बच्चों को जिंदा 2-3 साल के बच्चों में नदी में फेंक दिया करती थी। मां माने तांकर सानो पुओ मान झियो मान को 2-3 वर्ष पुओ झियो मान को नदी रे फेंकी दउथिले। तुम्हारे मन की मनोकामना पूरा नहीं होता है, तुम्हें किसी नुकसान से बचना है तो बच्चों को नदी में बहाओ, दूध को नदी में बहाओ। दिस इज ऑल जो रियल नहीं है परंतु ये अवास्तविक है, इससे बचें। आओ जे माने कि आपन जीवन रे पूर्ण हो नाही तबे आपन पुओ जीवन नदी रे फेंकतु आओ कोन करतु आपन जीवन पाप कोन शांति को पांतु। वो जब लेडी उद्धार पाई जब से स्त्री उधार पाइला जो बिहार के नदी में अपने बच्चों को फेंकी थी जे कि बिहार नदी रे निज छुआ को फेंकी दिला उस नदी के पास जाके बोली से नदी पाक जाई कहला गंगा मैया ए गंगा मैया मेरे पुत्र को लौटाओ और पिला कर दे। समझ में क्या बोल रहा हूँ? बुझी परछती कोन कोछि जो ले लिया सो ले लिया वो देने वाला नहीं है। झूठा नहीं गला से देवा व्यक्ति ना मन फिराओ, मन परिवर्तन करंतु उद्धार प्राप्त करो, परित्राण प्राप्त करंतु। हालेलुया 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 हालेलुया। दाऊद कहता है मुझे मेरा उद्धार वापस दे और मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। दाऊद कहती मते उद्धार दे दियो पुनर्बार आ मो मन मध्य रे स्थिर आत्मा दियो। यीशु ने कहा यीशु कहिले जॉन 10:10 जहन 10:10 चोरी करने नाश करने घात करने आया है। चोर चोरी बदो विनाश करबा आसे। इस संसार में रहते समय आप विनाश हो रहे नाश हो रहे आपको कुछ छुपी हुई चीजें बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रही है तो जदि आपण माने ए संसार रहिबा समय आपण को नष्ट करूची विनाश करूची आ किछि विषय जदि आपण को नष्ट करबा जाउ छी यीशु कहते हैं मैं आया जीवन देने। यीशु कहू छते मो जीवन देबा आसी पूरा जीवन नहीं आ ठीक है अल्प जीवन नहीं 10% नहीं 10 भाग नहीं 50% नहीं 50 भाग नहीं 100% जीवन देने यीशु हे है। भागो जीवन देबा आसी। आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे प्रभु के चरणों में। आसन समस्त प्रभु के सामने वो यीशु जो जिंदगी देता है, यीशु जीवन दियंती वो यीशु जो उद्धार देता यीशु है, उद्धार दियंती वो यीशु जो मुक्ति देता यीशु है, मुक्ति दियंती उसी गांव में उस यीशु को अपना जिंदगी अपना दिल देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ए उसी गारे निज जीवन को देबा चेष्टा करंतु। आज रात के समय मेरे भाइयों मेरे बिना से मैं कहना चाहता हूँ आज रात समय में भाई बने वो अपन को कहना चाहे आपको बेशक आपके प्रॉपर्टी के खेती बाड़ी का अंदर अंदर नुकसान हो रहा होगा, यदि आपण को जमी बाड़ी खेती बाड़ी रा नुकसान होउची वो वापस आ जाएगा ता आसीबो। लेकिन पाप के कारण यदि आप आपकी आत्मिकता में बढ़ने के लिए कुछ रुकावट हो रही है तो यदि पाप द्वारा आपण को आत्मिक रो अभिवृद्धि किछि रुकावट होउची आप आंख बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आपण मन आखी बंद करंतु आपण को हमें प्रार्थना करबा चाहे। आज रात के समय मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कितने प्रकार के नुकसान का सामना कर रहे हैं। मु जानि नै इ रात समय आपण मन केते व्यक्ति क्षति रे परिपूर्ण हे छथि, लेकिन आज रात में प्रभु यीशु आपके नुकसान को अपने क्रूस से उठाना चाहते हैं। आज रात समय आपण मन क्षति विषय को प्रभु यीशु को निज क्रूस से उठाए। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28 में यीशु कृष्ण कहले मत्ती 11:28 में दबे लोगों हे परिश्रांत भारग्रस्त लोगों नुकसान उठाने वाले लोगों हे परिश्रांत भारग्रस्त लोगों आपकी जिंदगी जीने वाले लोगों पाप जीवन तो लोगों ने मेरे पास आओ। ओ निकट दास आप कहां जाके दुख से भर गया नुकसान हो गया आप लोग कोटी कोले पाप पर पड़िले क्षति हला, लेकिन यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। यीशु कहले मो निकट दास तुम मो निकट दास I will give you the peace, मु तुमन को शांति देबी eternal peace, अनंत शांति eternal salvation. अनंत परित्राण। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। आज रात में यदि आप आनंद के साथ खुशी के साथ आराधना प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो आज रात समय आनंद रे शांति रे आराधना प्रार्थना करी पार न होती आत्मिक रूप में हड्डियां टूट चुके हैं तो आत्मिक रूपी हाड़ भागी जाई अछि तो मैं प्रभु से आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु को आपण को यीशु के नाम में कहू प्रभु यीशु से कहे
आत्मिक क्षति, मानसिक नुकसान, मानसिक क्षति, शारीरिक नुकसान, शारीरिक क्षति, अलौकिक नुकसान, अलौकिक क्षति। हाथ उठा के प्रभु से बोले, हाथ उठा के प्रभु को कहतु, प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु मत बचा, हे यीशु, हे यीशु मुझे बचा लो, मत बचा, मुझे मेरे पाप से बचा लो, मत मोर पाप को बचा, मेरे पत्नी को बचाओ, मोर स्त्री को बचा, मेरे पति को मोर बचाओ, स्वामी को बचा, मेरे बच्चों को बचाओ, मोर श्यामल को बचा, मेरे कलीसिया को बचाओ, मेरे को बचा, मेरे जवान पुत्रों को बचाओ, मोर परिवार को मेरे बचा, जवान पुत्र को बचाओ, मोर परिवार को बचा, हमारे पाप से बचाओ। मोर परिवार को बचा। एक्टिंग में जीवन जीना बंद करें, अभिनय जीवन बिताइबा बंद करंतु, वास्तविक भी जीवन में आ जाए। वास्तविक जीवन आसंतु, प्रभु से कहे, प्रभु को कहतु, प्रभु मैं तेरे लिए जिंदगी जीना चाहता हूँ। हे प्रभु मु तो मैं बंचिबा को चाहे, आज, आजी, कल, काली, परसों, मोर दिन, 3 दिन दिन मुझसे बातें करो, मोते कथा को, पत्नी से बोलो, स्त्री को, मेरे बच्चों से बोलो, मोर श्यामल को, मेरे पति से बोलो, मोर स्वामी को, मेरे कलीसिया से बोलो, मंडली को, मुझे कहाँ नुकसान हो रहा है, मुझे नुकसान से बचाओ। हे प्रभु केउटी केउटी मोर क्षति होची, से क्षति मते बचाओ। ये प्रार्थना करें, प्रार्थना करंतु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। Jesus, thank you, Lord. भाई भौणी माने प्रार्थना करिबा। हमने